بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک برڈ کے اوپر 10,000 روپیز جو ہے وہ ہم سبسڈی پرووائڈ کر رہے ہیں. نیا کانسیپٹ تھا فارمنگ کا اور یہ ایک بڑا اچھا تھا کہ نئی انٹرپرینورشپ اور ڈائیورسفائی فارمنگ لے کے آئے. جتنی آپ کی آبزرویشن اس برڈ کے بارے میں ڈیپ ہوگی اتنی آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوگی. فارمرز کی سہولت کے لیے تجربہ کار ڈاکٹرز ہر 3 ماہ بعد فارم کے دورے کو یقینی بنائیں گے. ڈاکٹرز کو ہر قسم کی ادائیگی حکومت کرے گی، جبکہ فارمرز کو فی چوزہ 10,000 روپے سبسڈی کی مد میں 3 اقساط میں دیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں خصوصی طور پہ آسٹرچ فارمنگ کا ایک بہت بڑا سکوپ ہے، اور خصوصی طور پہ سی پیک کے بننے کے بعد اور جو فارنرز ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، اور تیسری چیز جو ریڈ میٹ کی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے. آسٹرچ فارمنگ اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کرے گا، ہمیں ایکسپورٹیبل سرپلس بھی جنریٹ کرے گا، اور بہت سی چیزیں جو ہمارے رورل ایریاز میں ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے اس چیز کو بھی سپورٹ کرے گا. اس پہ ابھی گورنمنٹ نے پچھلے سال یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اس کے پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں. اس میں جانور کا جو ویٹ گین ہے وہ ایک ایکسلنٹ سٹیج پہ رہا ہے، ایف سی آر اس کی بہت بہتر رہی ہے. لوگوں میں اس کی جو گوشت کے ٹیسٹ کے متعلق کوئریز اور کوشچنز تھے، اس میں بہت پازیٹیو چیزیں آئی ہیں. شتر مرغ کے گوشت کے ساتھ ساتھ اس کی بائی پروڈکٹ فیڈ پر اور چمڑے کی پروسیسنگ کر کے بہتر نرخ پر فروخت کو یقینی بنایا جا رہا ہے، تاکہ فارم کے منافع میں اضافہ کیا جا سکے. ملکی اور غیر ملکی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب 80 سے 100 کلو گرام وزن کے زندہ پرندے کو بحساب 575 سے 620 روپے فی کلو گرام خریدنے کی تجویز رکھتی ہے. شتر مرغ کی مخصوص خوراک کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے خوراک کی تیاری کروائی جا رہی ہے. 3 اقساط میں، تو اس سے فارمر کی بہت ساری جو اس میں لاسز ہیں اور اس کے اندر جو انسینٹیوائز کرنا ہے وہ ایک سکسیسفل ریشو سے ہوا. اور اب ہم انشاءاللہ چونکہ اب ہماری کراپ جو ہے وہ پہلی پروڈکشن ہماری اگست کے اندر آ جائے گی، تو ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جو کنزیوم کرنے وہ کنزیومرز ہیں ان تک اس گوشت کو، فریش میٹ کو ہم پہنچا بھی سکیں، اور اس کا فائدہ بھی ہے. اس کے لیے بھی ہم نے فارمرز کو ڈائریکٹ انوالو کیا ہے، اور ہر جگہ پہ جب گوشت سپلائی کیا جائے گا تو اس گوشت کو خریدنے والا یہ کنفرم کر سکے گا وہ ٹریسیبل میٹ خرید رہا ہے، اور جس جگہ سے یہ جانور، جس شخص سے جانور فارمر سے یہ آیا ہوگا، وہ اس سے ڈائریکٹ اس سے بات بھی کر سکے.
चहकता, खेल कूद और अटखेलियां करता हुआ ये खूबसूरत परिंदा शुतुरमुर्ग है, जो असरे हाजिर का सबसे बड़ा ऐसा परिंदा है जो उड़ने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन खतरा भांपते ही इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। अपने भारी भरकम जिस्म के बाइस ये ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक ही दौड़ सकता है। चंद साल पहले तक शुतुरमुर्ग वाइल्ड लाइफ जानवर की फहरिस्त में शामिल था, जिसके बाइस इसकी घरों या फार्म्स में अफजाइश पर पाबंदी थी। 2012 में वाइल्ड लाइफ जानवरों की फहरिस्त से इखराज करके लाइव स्टॉक में शामिल कर दिया गया, जबकि 2016 में शुतुरमुर्ग को पोल्ट्री फार्मिंग का परिंदा करार दिए जाने के बाद शुतुरमुर्गबानी के फार्म्स में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे किसान कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। देखें, ये एक नया कॉन्सेप्ट था फार्मिंग का, और ये एक बड़ा अच्छा था कि नई एंटरप्रेन्योरशिप और डाइवर्सिफाई फार्मिंग लेके आए, और इसकी जो मीट की क्वालिटीज़ हैं उसको ना सिर्फ पाकिस्तान मार्केट के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी हम लेके चलें। तो यूनिवर्सिटी ने लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और इसमें हम एक मॉडल फार्म बनाया हमने अपने रावी कैंपस पे, और मकसद हमारा जो है वो फार्मर्स की ट्रेनिंग है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनको सारे SOPs दिए कि फीड कैसे इसको बनानी है, उसके ब्रोशर्स बना के दिए, और एक नई टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए एक WhatsApp का ग्रुप बनाया हुआ है, जिस फार्मर को जो इंफॉर्मेशन फौरी चाहिए वो दे रहे हैं। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब और यूवास की जानिब से किसान भाइयों की सहूलत और उन्हें शुतुरमुर्गबानी के फार्म्स के लिए जरूरी इक़दामात और हिदायत से आगाह करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, ताकि किसान इससे इस्तेफादा करके बेहतर मुनाफा कमा सकें। शुतुरमुर्ग का गोश्त ग़िज़ाई लिहाज से इंतहाई फायदेमंद, जबकि इसकी खाल दुनिया की महंगी तरीन खालों में शामिल है, और इसके पर भी मार्केट में अच्छे रेट पर फरोख्त होते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग से हासिल होने वाला तेल मुख्तलिफ बीमारियों में सूदमंद होता है। तो मकसद ये है कि ये फार्मर्स की रहनुमाई की जाए, जितने भी प्रोडक्शन के डिज़ीज़ के एस्पेक्ट्स हैं, और आगे हम इसको मार्केट के जो कंज्यूमर से लिंक अप करना, उसको भी थ्रू हमारा जो मीट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑस्ट्रिच मीट को भी हम लेके आएंगे, हमारा अपना मीट का पूरा सेटअप है। तो मकसद ये है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप आए। इसमें ये भी है जी कि फर्दर हम इस पे एक फार्मर्स को एक रीजनल लेवल पे एक बैक स्टॉपिंग के लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स भी दे रहे हैं, ताकि वो फार्मर्स को मिल के उनकी डे टू डे या जो भी कोई एमरजेंसी है, कोई इश्यूज़ हैं, उसको सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करें। फार्म के लिए खुली वसी और अरीज जगह होनी चाहिए, क्योंकि कम जगह इनकी बढ़ोतरी को मुतासिर करती है। फार्म के दो हिस्से होने चाहिए, एक कवर एरिया और दूसरा खुला एरिया। जब पंजाब गवर्नमेंट ने ये वाला प्रोजेक्ट शुरू किया तो इसमें जो इसके बड़े 5-6 कंपोनेंट थे, उसमें से एक बड़ा कंपोनेंट ये भी था कि एक ऐसा हम मॉडल ऑस्ट्रिच फार्म बनाए जहाँ पर के फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि जब ये ऑस्ट्रिच फार्मिंग का कंसेप्ट यहाँ पर शुरू किया गया तो उसमें ये था कि ऑस्ट्रिच के बारे में लोगों को इल्म नहीं था कि ये बर्ड को कैसे पालना है, इसकी फीडिंग कैसे है, ये किस माहौल में रहता है। बस इतना ही सुना था कि ये सहरा का परिंदा या डेजर्ट जो है इसको कहा जाता है। तो उस वाले से फिर हमने यहाँ पर अपना एक मॉडल फार्म जो है उसकी तश्कील की, और उसमें फिर बड़ी बातें जो ज़ाहिर है हमारे लिए भी नई थी और लोगों के लिए भी नई थी, तो हमने ये वाली जगह जो है C ब्लॉक के अंदर बिल्कुल एक ऐसा उसको कुदरती माहौल दिया जिसके अंदर बर्ड जो है वो ये महसूस करे कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है। शिकारी जानवर दोनों जगहों पर शुतुरमुर्ग के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जानवरों की देखभाल पर मामूर अफराद को चौकन्ना रहना चाहिए और फार्म की तैयारी के वक्त इससे बचाव के इक़दाम लाजमी किए जाएं। शेड की तैयारी के दौरान इसके इर्द गिर्द 500 की चारदीवारी के साथ
जाली नुमा कपड़ा लगाएं ताकि परिंदे बाहर ना देख सकें, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर डरने वाला जानवर है। दूसरे जानवरों को देखने से ये खौफजदा हो सकता है। खाने पीने के लिहाज से जो है वो इसकी बेहतरीन खुराक जो है वो इसका लूसन है और फीड है। आम तौर पर लूसन जो है वो 70% डाला जाता है और फीड जो है वो 30% को डाली जाती है। और असल जो मैं लोगों को या फार्मर्स को मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो ये बात है कि मैनेजमेंट असल चीज़ है। मैनेजमेंट जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब मेरा ये है कि आप फार्म के ऊपर 24 आवर आप ड्यूटी के ऊपर, अगर आप बिल्कुल इसको मुलाजमों के हाथ पे छोड़ दोगे, तो हमने ऐसे फार्मर भी देखे हैं जिन्होंने मुलाजमों के हाथ में छोड़ा तो उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा भी है। हमारे अंदर भी शुरू के अंदर ये वाला प्रॉब्लम आया था जब हमने इसको मुलाजमों के ऊपर छोड़ा था ये वाला, लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, उन्होंने 24 आवर्स के ऊपर ड्यूटी दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोर्टेलिटी और जितने हमने बर्ड लिए थे उतने को उतने हमारे पास बर्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। और दूसरा मैं ये कंसेप्ट भी लोगों का क्लियर कर दूँ कि इसको चूँकि कहते हैं ये गर्म परिंदा है और ये गर्म सह सकता है, नो डाउट ये सह सकता है, लेकिन वो इसकी एज 1 साल बाद है। शुरू के महीने में जो भी अब लोग इसको लेंगे उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि इसकी गर्मी सर्दी का वैसे ही ख्याल रखना है जैसे हम आम चूज़े की करते हैं। और इसी तरह सर्दी के वाले से भी मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है इसको रात के मौसम के टाइम, रात के वक्त जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हमें इसकी ब्रूडिंग के वाले से, इसको टेम्परेचर के वाले से वो वाली बात हमें इसको ज़रूर करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो नहलाने में कोई हरज नहीं है, चाहे आप दिन में 3 दफ़ा नहलाएँ, दिन में 4 दफ़ा नहलाएँ, क्योंकि नहलाने के बाद वो अपने आप को बड़ा खुश महसूस करेगा और वो अपने परों की मूवमेंट से आपको बताए कि बर्ड इज़ हैप्पी। तो ये तमाम बातें मैं इस हवाले से कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन इज़ ए ग्रेट टूल, कि जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन इस बर्ड के बारे में डीप होगी उतनी आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। माह दिसंबर और जनवरी के अलावा तमाम साल चूजे डाले जा सकते हैं, जबकि बेहतरीन वक्त सितंबर और नवंबर का महीना है। नए फार्मर हजरात 2 माह तक की उम्र के बच्चे लेकर पालने को तरजीह दें। अफ्रीकन ब्लैक नेक नस्ल के परिंदे पंजाब के मौसम के मुताबिक मौजूद तरीन हैं। बेहतर बढ़ोतरी, कम शरह अमवात, बेहतर FCR की वजह से काबिल तरजीह हैं। लाइफ स्टॉक के महकमे की कॉर्पोरेशन की वजह से मुश्किलात मुझे कोई नहीं आई, लेकिन फ्यूचर में जो इनकी गाइडलाइन है वो मेरे लिए बहुत अहम रखती हैं। नसीम साजिद साहब के पर्सनल एफर्ट्स की वजह से मैं इस बिज़नेस में आया हूँ। मैं नसीम साजिद का उस वक्त से मुतासर हूँ जब ये मुल्तान में थे, तो जो कहते हैं वो करते हैं, इस वजह से मैं इन और में आया हूँ। ऑस्ट्रिच जो है उसे पालने के लिए जो इन्होंने मोटिवेशन दी उसको एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस वक्त एक अच्छे अर्निंग की तरफ जा रहा हूँ। शुतुरमुर्ग में रानीखेत की वैक्सीन के अलावा दूसरी कोई वैक्सीन जरूरी नहीं। शुतुरमुर्ग के चूजे को पहली वैक्सीन 30 हफ्ते, दूसरी 6 हफ्ते और फिर 30 महीने रानीखेत वैक्सीन पीने के पानी में पिलाएं और हर 2 माह बाद दोबारा पिलाएं। अद्वियात के हवाले से भी ये हसास परिंदा पाया गया है। इसको किसी किस्म की अद्वियात की जरूरत नहीं। पेट के कीड़े मार अद्वियात सिर्फ फिकल टेस्ट के बाद इस्तेमाल किए जाएं। गर्मी के मौसम में परिंदों को सुबह शाम नहलाएं। नीज 80% विटामिन C 1 ग्राम 10 लीटर पानी में मुतवातिर इस्तेमाल कराएं। ताज़ा पानी की फराहमी यकीनी बनाएं। हर परिंदे को टैग नंबर लगाया जाए ताकि परिंदों की रिकॉर्ड साजी की जा सके। बीमारियों के जो मेजर कंपोनेंट है वो 2 हैं। इसमें नंबर 1 मैनेजमेंटल डिजीज़ हैं। मैनेजमेंटल डिजीज़ में 2 कंपोनेंट बड़े वाज़े हैं जो कि इब्तदाई दिनों में, शुरू के 90 दिनों में तकरीबन 30 से 40% अमवात की वजह बन सकते हैं। उनमें इनका लंगड़ापन है और इनके मैदे का चोक हो जाना है। जो लंगड़ापन है उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप शुतुरमुर्ग के बच्चे को प्रॉपर जगह नहीं दे रहे, बर्तन प्रॉपर नहीं दे रहे, फीड के बर्तन, पानी के बर्तन प्रॉपर नहीं दे रहे, फीड आप उसको कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। अगर ज़्यादा दें तो उसका वज़न ओवरवेट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी टांगों में टेढ़ापन आ जाता है। अगर कम दें तो उसको विटामिन मिनरल की कमी आ जाती है जिसकी वजह से उनकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। तो फीड का अगर साइज़ उसकी एज के मुताबिक नहीं है, अगर आपने फॉडर डाला है उसका साइज़ बड़ा है तो उसमें उसके मसाइल आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा बैलेंस फीड और जितनी कैलकुलेटेड फीड बनती है वो लंगड़ा पाना है। दूसरे नंबर पे इसके मैदे का चोक हो जाना, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट बर्ड है। इब्तदाई दिनों में अगर आप इसको फीड नॉन फूड आइटम दें या वो खा जाए किसी वजह से, या आप फीड ना दें
उस वजह से इसको आदत है पिकिंग की, मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की। तो ये पत्थर का या कांच का कोई टुकड़ा खा जाएगा कोई, उसकी वजह से वो मैदे में जम जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाती है। आप पाउडर डालते हैं, पाउडर का साइज़ बड़ा हो जाए तो वो भी मैदे में एक चोट की वजह बनती है, जो इसकी ख़ास अमवात की वजह बनती है। दुनिया में इसकी बहुत सारी नस्लें मौजूद हैं, जिनको इनकी गर्दनों के रंग की वजह से पहचाना जाता है, जैसे सुर्ख गर्दन, नीली गर्दन, काली गर्दन और गुलाबी गर्दन वाले शुतुरमुर्ग हैं। नए फार्मर चूजे खरीदते वक्त दरामद कुनंदगान से इस बात को यकीनी बनाएं कि मंगवाया जाने वाला चूजा ब्लैक नेक ही है और उस मुल्क से दरामद किया गया है जिसका मौसम और आबोहवा पंजाब से मुताबिकत रखता है। शुतुरमुर्ग के चूजे 8 से 12 हफ्तों में अपने जिस्म का दर्जा हरारत पूरा करने के हामिल होते हैं। ब्रूडिंग के लिए इब्तिदाई दिनों में खुसूसी हिफाजत और इंतजामात करना चाहिए। इस मरहले में शुतुरमुर्ग के चूजों को किसी मखसूस आले, हीटर, भट्टी, बल्ब वगैरह से हरारत दी जाती है। गर्मियों में 4 से 5 हफ्ते चूजों को फार्म के अंदर ही रखें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इनको वर्जिश के लिए मुनासिब जगह दरकार होनी चाहिए। ब्रूडिंग के दौरान पानी शुतुरमुर्ग के चूजों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तजर्बा से साबित हुआ है कि छोटे चूजे बालिहाज जिस्मानी वजन बड़े शुतुरमुर्ग से ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। चूजों को नमकियात की कमी से बचाने के लिए बर वक्त साफ और ठंडा पानी देना चाहिए। ना इन्हें चमक के उत्ते जाता है ना, वो पीला रंग भी हल्का किया ना जिस तरह असीं कीता होया, वो फिर भी वो शक्ल नज़र आनी चाहिए अपनी। जो पानी शक्ल अपनी नज़र आती ना, उस तो छोटे चूजे नूं बर्तन असीं हजे भी पेटी दे बनाए ने, वो पेटी का जिहड़ा बर्तन उहदा चमक दिंदा है, वो फिर जांदा है, फिर उहदे उत्ते जदों दी शक्ल नज़र आती है चमक वजदी है, वो ज़्यादा उन्होंने पानी पीने की कोशिश करता है। जिथे उन्हें 2 घुट पीने उसे 4 घुट पी के वापसी आता है। पानी के तमाम बर्तन रोजाना साफ करें। जहां तक मुमकिन हो सके उनको रोजाना पिंकी से धोएं। इब्तिदाई अय्याम में शुतुरमुर्ग के चूजे पानी को पहचानते नहीं हैं, लेकिन एक चपटी सतह वाले बर्तन में पानी की चमक की वजह से चूजे चोंच डालते हैं। छोटे चूजों को खुराक खाने की आदत डालने के लिए सब्ज चारे के छोटे छोटे टुकड़े पानी में डाल दें, ताकि चूजे पानी के साथ आसानी से खुराक खाने की आदत अपना सकें। चूजों की जरूरत के मुताबिक खुराक के बर्तन रखें। एक गोल ट्रे 5 से 8 चूजों के लिए इब्तिदाई अय्याम में काफी है। शुरू के हफ्ते में एक दिन में खुराक के अलावा लोसन 4 मरतबा दें। खुराक हमेशा ग्रुप में दें, क्योंकि ये एक दूसरे को देखकर खुराक खाते हैं। अगर मुमकिन हो सके तो चंद हफ्ते बड़ी उम्र के चूजों को इनमें छोड़ दें, जो छोटे चूजों को खुराक खाने की तरबियत देते हैं। अगर शुतुरमुर्ग के चूजे न मिलें तो ब्रायलर या लेयर साथ छोड़ दें। एक हफ्ते के बाद खुराक 7 से 8 मरतबा थोड़ी थोड़ी डालें और बर्तन को बार बार किसी चीज से टकराएं, ताकि वो बार बार खुराक खाएं और इनकी तवज्जो किसी दूसरी तरफ ना जाए कि वो दूसरी अशिया खाना शुरू कर दें। शुतुरमुर्ग के चूज़ों की ब्रूडिंग के दौरान खुराक की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चंद दिन बहुत अहम है, इसलिए कि इन्हीं दिनों में अगर उसको प्रॉपर प्रोटीन और फाइबर मिलेगा और उसके पेट के अंदर जो जर्दी है वो बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, यानी अब ये कह सकें उसको जो उसका टोटल वज़न है, तमाम वज़न उसका अगर 900 ग्राम है, उसमें से 300 ग्राम 400 ग्राम तक इसके जर्दी की मकदार या उसके वज़न हो सकता है। तो इसका जो जर्दी है वो तभी टूटती है या अब्जॉर्ब होती है, जज़ब तभी होती है जब इसको बैलेंस आप उसको खुराक देंगे। तो खुराक मुतवाज़न तभी हो सकती है जब आप किसी प्रॉपर, या तो ख़ुद किसी कंपनी से उसकी खुराक आपने ख़रीदी हो, तो या आप ख़ुद अदारे से आप मशवरा करके एक मुतवाज़न खुराक बनाएं, और वही फिर बाद में जब इसकी जो जर्दी आहिस्ता आहिस्ता टूटेगी, जर्दी आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होगी, उसका खुराक जिस्म का हिस्सा बनेगी, और ये सारा अमल जो है 14 दिन तक हो सकता है।
दुनिया में शुतुरमुर्ग के गोश्त की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है। इसको इसकी कम कैलोरीज और कम चिकनाई की वजह से पसंद किया जाता है। शुतुरमुर्ग का गोश्त देसी ऑर्गेनिक गोश्त है, जिसका जायका अगर छोटी उम्र में ज़बह किया जाए तो बछड़े के गोश्त जैसा है, और अगर बड़ी उम्र 10 माह से ज्यादा का हो तो इसका जायका बीफ के गोश्त जैसा है। ये सुर्ख गोश्त है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल सफेद गोश्त यानी चिकन और मछली से भी कम है। गोश्त की पहली अफादियत तो यह कि ये बात जहन में रखें कि ऑस्ट्रिच का गोश्त आम गोश्त से मुख्तलिफ है। ये अपनी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से या उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोजिशन है, फीचर्स हैं, ये डिफरेंट है। हम जितने गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो सारे एसिडिक मीट होते हैं, और शुतुरमुर्ग का गोश्त जो है वो अल्कलाइन मीट है। इसी तरह ऊँट का गोश्त जो है वो भी अल्कलाइन मीट होता है। एक तो ये फौरी हज़म हो जाता है, इसको गलाने के लिए आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने पानी में फटाफट गल जाएगा। अगर आप पानी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसको हर किस्म के मरीजों के लिए तजवीज़ किया है। शुतुरमुर्ग का गोश्त कीमत के लिहाज से बकरे के गोश्त से थोड़ा ज्यादा है, मगर अफादियत के लिहाज से बकरे के गोश्त से कहीं ज्यादा बेहतर है। शुगर पहले कहा जाता था कि बड़ों की बीमारी है, टाइप 2 डायबिटीज़ ओल्ड एज में होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ भी बच्चों में हो रही है, और इसकी वजह है मोटापा, ओबेसिटी। जहाँ तक डायबिटीज़ और शुतुरमुर्ग के गोश्त की बात है ना, डायबिटीज़ के अंदर हम मरीज़ का कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हम हर मरीज़ को कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है, आप लोग रेड मीट खाना बंद कर दें, और इसके अलावा हम कोलेस्ट्रॉल की मल्टीपल मेडिकेशंस दे रहे होते हैं। रेड मीट के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमें उसे बंद करना पड़ता है। अब शुतुरमुर्ग का जो गोश्त है, ये वैसे तो मतलब शुतुरमुर्ग एक परिंदा है कि पोल्ट्री में होना चाहिए, लेकिन इसके अफादियत रेड मीट के जैसी है, कोलेस्ट्रॉल लो के साथ, यानी कि डबल एडवांटेज है कि आपको वाइट मीट और रेड मीट के अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है, जो कि वैसे इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, और दूसरी चीज़ इसका कोलेस्ट्रॉल बहुत लो है, और इसकी वजह से हमारे पास पेशेंट को जो कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाते हैं। थर्डली, इसमें मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत अच्छा है, और इसका आयरन कंटेंट बहुत अच्छा है। शुतुरमुर्ग के गोश्त की कढ़ाई बहुत जल्द सूबा पंजाब के तमाम बड़े शहरों के बड़े रेस्टोरेंट पर दस्तयाब होगी। शुतुरमुर्ग का गोश्त हल्की आग की बजाय तेज आग पर जल्द पकता है, सुखड़ता नहीं और मजेदार बनता है, जबकि दूसरे हर किस्म के गोश्त को हल्की आग पर पकाया जाता है। पाकिस्तान में हमारे पास अक्सर आपने देखा है कि पहले बच्चों के कद लंबे लंबे होते थे, अब कहते हैं जी आजकल कद छोटे हो रहे हैं, उतनी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो रही। उसके स्टंटिंग ग्रोथ के हवाले से जहाँ बात की जाए ना, तो आयरन कंटेंट बच्चों का कम होता है। आजकल अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि आयरन की हर चीज़ में ऐड करते हैं, मिल्क्स के अंदर, आर्टिफिशियल सीरियल्स के अंदर। तो ये जो हमारे पास अभी मैंने पहले भी जैसे बात की कि जो शुतुरमुर्ग का गोश्त है, इसका प्रोटीन कंटेंट के साथ आयरन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। लाइक अगर वाइट मीट की बात करें तो उसमें आयरन नहीं है, प्रोटीन है। और रेड मीट जो हमारे पास बीफ की कैरेक्टरिस्टिक है कि बीफ के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से इसके शुतुरमुर्ग के गोश्त के अंदर भी आयरन बहुत ज़्यादा है। और ये बच्चों की जो ग्रोथ है, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट, उनकी हाइट, उनकी इम्यूनिटी, उस सब के लिए बहुत अच्छा है। शुतुरमुर्ग का 90% गोश्त चर्बी से पाक होता है। इसमें प्रोटीन की मिकदार ज्यादा है और पकाने के दौरान गोश्त सुकड़ता नहीं है। इस जानवर का जो इंट्रोडक्शन है इस इलाके में, और इसके गोश्त की जो क्वालिटी है और जो कंजम्पशन है, और ख़ुसूसी तौर पे इसके गोश्त के अंदर जो आयरन की डेफिशिएंसी जो हमारे सबसे ज़्यादा हमें अफेक्ट कर रही है हमारे बच्चों को स्टंटेड ग्रोथ की वजह से, उसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा, और बजाय मेडिसिन लेने के हम इस चीज़ को कवर कर सकें। इसके अंदर ऐसी खुसूसियात अल्लाह ताला ने रखी हैं कि ये एंटी कैंसर प्रमोटिंग सेल्स, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खुसूसियात रखी हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो गुज़िश्ता 50-60 सालों में हमारे यहाँ तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, इस गोश्त के इस्तेमाल से, ऊँट के गोश्त के इस्तेमाल से वो चीज़ें मिनिमम हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर या हेपेटाइटिस, स्पेशली हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए समझ लें कि ऑस्ट्रिच का गोश्त, ऑस्ट्रिच का अंडा, उसकी सफ़ेदी, ये उसको आप समझ लें कि दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें अल्लाह ताला ने इतनी खूबियाँ रखी हैं और इतनी उसकी तासीर रखी है कि ये चीज़ें उससे कवर हो सकती हैं। आप 2 किलो 4 किलो अगर इसका गोश्त खा जाएँ तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं, इतना लाइट है, इजीली हज़म हो जाता है। अलबत्ता जो कि ये बहुत ताकत वाला गोश्त है, उसमें एनर्जी काफ़ी होती है, मिनरल्स, आयरन बहुत होती है, तो उससे कुछ लोग कहते हैं ये गर्म गोश्त है। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ उसकी जो चीज़ भी एनर्जी वाली होगी वो आपको फीलिंग इस तरह की आएगी। ये बहुत सारे लोग हमसे ऐसे लेके जाते हैं जिनको कुछ जोड़ों का दर्द होता है या कमर का दर्द होता है, वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं हमें बहुत इसका अफाका हो रहा है। अब ये चीज़ें जैसे जैसे यहाँ इस्तेमाल होंगी
لوگ اس کی فیڈ بیک ہمیں دیں گے کہ اس سے کیا کیا فائدے ہیں. لیکن یہ اس کو موسٹ ہیلدی میٹ آپ کہہ سکتے ہیں جتنے میٹ اویلیبل ہیں, اور پرائس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو یہ مٹن سے تھوڑا سا اوپر ہے. شتر مرغ کی کھال دنیا کی دوسری مہنگی کھال سمجھی جاتی ہے. اس سے گوشت کے علاوہ 45% منافع کمایا جا سکتا ہے, جبکہ پروں سے مزید 5% کمائی ہو سکتی ہے. اسی طرح شتر مرغ کی چربی سے آئل نکالا جاتا ہے جو کہ دنیا میں مہنگا ترین آئل ہے. اس کو جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر مختلف قسم کی جلدی بیماریوں کے علاج میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ پروفٹ کی طرف آتے ہیں تو اس کے بائی پروڈکٹس سیل ہو جاتے ہیں. پہلے کچھ سالوں میں اس کا یہ ہوتا تھا کہ لوگ صرف اس کو فیدرز کے لیے لیتے تھے, اس کی گرو کرتے تھے, گوشت کسی کام نہیں آتا تھا. اب اس کا میٹ بھی یوز ہو رہا ہے, یہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہے. تو اس کا میٹ بھی استعمال ہو جاتا ہے, فیدرز بھی استعمال ہو جاتے ہیں, کھال بھی ہوتی ہے, بائی پروڈکٹس. وہ ابھی پاکستان میں اتنی ڈیولپڈ نہیں ہے, مگر جیسا کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ فوکس کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ یہ 2 سے 3 سال میں آپ اس کے رزلٹ سامنے ہوں گے.